Welcome back to this session of the Hindu newspaper analysis for UPSC Civil Services examination. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is how are India-Taliban relations changing. Second issue is related to status of elephants in India. Third issue is related to Nila Kurinji flowers bloom. And fourth issue is related to plastic pollution in India. So let's discuss all the issues in detail. In this session, we will discuss about India-Taliban relations. Why is India talking to Taliban? Why in news? Recently, Afghanistan's foreign minister visited to India. This is his first official trip since the Taliban's return to power. The visit marks a significant shift in India's foreign policy as New Delhi engages with the Taliban despite not officially recognizing their government. रिसेंटली अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया विजिट किया है। तालिबान के पावर में आने के बाद ये इस टाइप की फर्स्ट ऑफिशियल ट्रिप है इंडिया के लिए। इस विजिट ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर तालिबान को लेकर क्या सिग्निफिकेंट शिफ्ट आए हैं उसको मार्क किया है। इंडिया ने तालिबान गवर्नमेंट को ऑफिशियली रिकॉग्निशन गिवन नहीं किया है। इंडिया शुड फोकस तालिबान स्टैंड ऑन वुमेन्स राइट एंड गवर्नेंस। तालिबान का वुमेन के राइट्स एंड गवर्नेंस को लेकर क्या स्टेंस है, इंडिया को इस चीज़ पर भी फोकस करना होगा। इंडियाज अर्ली एनकाउंटर्स विद द तालिबान आर डिप्लोमेटिक डेड एंड। इंडिया का तालिबान को लेकर अर्ली एनकाउंटर्स क्या रहे हैं। 1999 IC 814 हाईजैकिंग। इंडियाज फर्स्ट सिग्निफिकेंट एंगेजमेंट विद द तालिबान अकर्ड ड्यूरिंग द 1999 IC 814 hijacking when the external affairs minister communicated with the Taliban foreign minister। इंडिया और तालिबान के बीच में फर्स्ट सिग्निफिकेंट एंगेजमेंट 1999 में होता है, जिस टाइम पर IC 814 एरोप्लेन हाईजैक किया गया था। उस टाइम पर इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने तालिबान फॉरेन मिनिस्टर के साथ कम्युनिकेट किया। However, India and the Taliban lacked real common grounds as the Taliban remained deeply influenced by the Pakistan, making any meaningful diplomatic connection difficult। 1999 टाइम के ड्यूरिंग तालिबान का पाकिस्तान फुल्ली तरीके से सपोर्ट कर रहा था। इंडिया और तालिबान के बिटवीन कुछ डिप्लोमेटिक कनेक्शंस फॉर्म करने की कोशिश की गई, बट मीनिंगफुल डिप्लोमेटिक कनेक्शंस दोनों कंट्रीज के बिटवीन इस्टेब्लिश नहीं हो पाए। इंडियाज कोशिश एंगेजमेंट विद द तालिबान। स्ट्रेटजी ऑफ कोशिश एंगेजमेंट। इंडिया ने तालिबान को लेकर कोशिश एंगेजमेंट पॉलिसी फॉलो की है। आफ्टर द तालिबान कैप्चर्ड काबुल इन 2021, इंडिया एडॉप्टेड अ स्ट्रेटजी ऑफ कोशिश एंगेजमेंट, choosing incremental diplomatic contact without granting formal recognition to the regime। 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान का रूल इस्टेब्लिश होने के बाद इंडिया ने तालिबान के साथ कोशिश एंगेजमेंट की स्ट्रेटजी फॉलो की है। द फर्स्ट ऑफिशियल इंट्रोडक्शन अकर्ड इन 2021 व्हेन इंडियाज एम्बेसडर मेट विद द हेड ऑफ द तालिबान्स पॉलिटिकल ऑफिस इन दोहा। The meeting, initiated at the Taliban's request, marked India's re-entry into the Afghan diplomacy. India's call for inclusivity. Soon after, India urged the Taliban to form an inclusive government that represent all ethnic groups and included women। इंडिया ने तालिबान से ये रिक्वेस्ट किया है कि वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट फॉर्म करे जिसके अंदर एथनिक ग्रुप्स ऑल एथनिक ग्रुप्स एंड वुमेन का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। Humanitarian outreach and reopening channels. In 2021, India sent 1.6 ton of essential medicines to Afghanistan, resuming humanitarian engagement। इंडिया ने अफगानिस्तान को लेकर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस गिवन किए हैं। 2021 में 1.6 टन एसेंशियल मेडिसिन इंडिया ने अफगानिस्तान सेंड की। By 2022, India deepened ties with a visit by the delegation led by the MEA Joint Secretary। During the current visit, India decided to upgrade its technical mission in Kabul to an embassy। This marked the first official Indian presence since the Taliban takeover, responding to human rights concern। In 2022, India publicly expressed concern over the Taliban's ban on women attending universities, reinforcing its stance on women's rights and inclusive governance। 2022 में इंडिया ने तालिबान की वुमेन को लेकर जो पॉलिसी रही है उसको लेकर कंसर्न पब्लिकली रेज किया, बिकॉज तालिबान ने वुमेन का यूनिवर्सिटीज में अटेंडिंग कराना बैन किया।
साथ ही वुमेन का राइट एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस से रिलेटेड इंस्टेंस जो भी रहा है तालिबान का, और उसको लेकर अपने कंसर्न रेज किए हैं। बाय द एंड ऑफ 2023, tensions resurfaced as the Afghan embassy in New Delhi ceased operations, citing a lack of support. 2023 के एंड में इंडिया और अफगानिस्तान के बिटवीन टेंशंस फिर से रेज होते हैं, बिकॉज न्यू दिल्ली में अफगान एम्बेसी ने ऑपरेशंस यहाँ पर सीज कर दिए, और इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट पर उसने कुछ एलिगेशंस पुट किए कि इंडियन गवर्नमेंट तालिबान एम्बेसी का सपोर्ट नहीं कर रही है। Evolving regional diplomacy 2024-2025. In January 2025, Taliban foreign minister hosted diplomats from 11 regional countries, including India, advocating a region-centric narrative for constructive engagement. The Taliban government condemned the Pahalgam terror attack, aligning with India's counter-terrorism concern, a subtle sign of growing diplomatic coordination. तालिबान गवर्नमेंट ने पहलगाम टेरर अटैक का भी कंडेम किया, और जो भी काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स हैं या कंसर्न है, तालिबान ने इंडिया का सपोर्ट किया है। व्हाई इंडिया इज चूजिंग टू एंगेज विद द तालिबान नाउ? प्रेजेंट में इंडिया तालिबान के साथ एंगेजमेंट को क्यों चूज कर रहा है? तालिबान लीडर्स हैव कंसिस्टेंटली प्रेज्ड इंडिया's डेवलपमेंटल रोल इन अफगानिस्तान, contrasting it with the selfish motives of the US. तालिबान लीडर्स ने हमेशा ये कहा है कि इंडिया ने अफगानिस्तान के डेवलपमेंटल एक्ट्स में ऑलवेज सपोर्ट किया है, जबकि यूएस का जो स्टैंड रहा है अफगानिस्तान को लेकर वो सेल्फिश मोटिव्स रहा है। टू सो दैट तालिबान इज ईगर टू एंगेजमेंट एंड सीक इंडियाज असिस्टेंस टू रीबिल्ड अफगानिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी। ये यहाँ पर गलत यहाँ पर टाइप हो गया, ये दिस होगा यहाँ पे, दिस सो दैट तालिबान इज ईगर टू एंगेजमेंट एंड सीक इंडिया असिस्टेंस। ये इंसिडेंट शो कर रहा है कि तालिबान इंडिया के साथ एंगेजमेंट करना चाहता है, और तालिबान इंडिया के साथ एवरी स्फेयर पर वर्क करना चाहता है। Balancing diplomacy with principles. India's outreach comes with moral and diplomatic dilemmas. While engagement aligned with the strategic and security interests, it raises questions about India's stance on Taliban's regressive policies, especially regarding women's rights and freedoms. इंडिया के तालिबान के साथ जो भी एंगेजमेंट हैं ये स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट को लेकर है, बट तालिबान का वुमेन को लेकर जो रिग्रेसिव पॉलिसीज रही हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इंडिया के बिफोर रेज होते हैं। अ चेंज्ड जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप, द रीजनल पावर मैट्रिक्स हैज शिफ्टेड ड्रामेटिकली सिंस द तालिबान्स लास्ट रूल। पाकिस्तान, once the Taliban's key supporter, is not now a key partner. Iran is weakened by internal and economic challenges. Russia is embroiled in war. The US under Donald Trump 2.0 has adopted a non-committed approach. Meanwhile, China has deepened its influence, becoming the first major power to exchange ambassadors with the Taliban. This evolving scenario has opened strategic space for India, pushing India to recalibrate its Afghanistan policy. कुछ सिनेरियो यहाँ पर इवॉल्व हुआ है जिसने इंडिया के लिए तालिबान को लेकर कुछ स्ट्रेटेजिक स्पेस ओपन किया है, और अफ़गानिस्तान के प्रति इंडिया ने कुछ अपना जो फॉरेन पॉलिसी है वो चेंज किया है। वो क्या-क्या सिनेरियो हैं, सच एज़ तालिबान का जो इससे पहले रूल था 1900 90s में, उस टाइम पर जो रीजनल पावर मैट्रिक्स था वो कुछ और था, आज कुछ और है। उस टाइम पर पाकिस्तान तालिबान का सपोर्टर था, बट आज नहीं है। प्रेजेंट में ईरान इंटरनली एंड इकोनॉमिकली वीक हो चुका है। रसिया वॉर में एम्ब्रोइडर्ड है। यूएस डोनाल्ड ट्रंप 2.0 रीजन नॉन कमिटेड अप्रोच फॉलो कर रहा है, एंड चाइना अभी भी अफगानिस्तान के अंदर अपना इन्फ्लुएंस डीप कर रहा है, बिकॉज चाइना ऐसा फर्स्ट कंट्री था जिसने तालिबान के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग किया, एम्बेसडर्स यहाँ पर एक्सचेंज करके। स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव्स फॉर इंडिया, इंडिया तालिबान रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने का स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव्स क्या-क्या हो सकते हैं?
India fears that a non-engagement would erode its decade-long investment in infrastructure, education, and connectivity projects and diminish its regional security leverage. इंडिया को सबसे बड़ा फियर ये है कि अगर तालिबान के साथ एंगेज नहीं होता है, अफ़गानिस्तान के अंदर इसके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो सभी उन पर जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया है, वो सभी इरोड हो सकते हैं। साथ ही रीजनल सिक्योरिटी लिवरेजेस डिमिनिश हो सकते हैं। Given Afghanistan's proximity and potential to influence India's internal security and trade routes, maintaining direct communication with Kabul has becomes essential. अफ़गानिस्तान के इंडिया के साथ प्रॉक्सिमिटी एंड इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी एंड ट्रेड के लिए अफ़गानिस्तान का इम्पोर्टेंस ये सब रीज़न है जिसने काबुल के साथ इंडिया के डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए नेसेसरी यहाँ पर शो किया। Unlike in the 1990s, the Taliban now face no internal political opposition within Afghanistan. 1990s से डिफरेंट प्रेजेंट में तालिबान अफगानिस्तान के अंदर पीपल का ओपोजिशन फेस नहीं कर रहा है। द पाकिस्तान फैक्टर इन इंडिया तालिबान रिलेशंस, इंडिया तालिबान रिलेशंस में पाकिस्तान फैक्टर क्या है? द डिटोरेटिंग relationship between the Taliban and the Pakistan has created new opportunities for India's engagement with Kabul. प्रेजेंट में तालिबान और पाकिस्तान के रिलेशनशिप डिटोरेट हो रहे हैं। इस रिलेशनशिप ने काबुल के साथ इंडिया के एंगेजमेंट के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर क्रिएट किए हैं। एज पाकिस्तान डिपोर्ट्स थाउजेंड्स ऑफ अफगान refugees, India has stepped in to provide humanitarian aid and logistical support to Afghanistan. India has delivered extensive relief shipment to Afghanistan, including 50,000 metric ton of wheat, 300 ton of medicine, 27 ton of earthquake relief material, 40,000 liter of pesticides, 100 million polio doses, 1.5 million COVID-19 vaccine doses, 11,000 hygiene kit for drug de-addiction। ये सब कुछ ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम्स थे, वो भी यहाँ पर सेंड किए गए हैं। India and Afghanistan have also discussed strengthening sports cooperation, particularly in cricket, which enjoy massive popularity among Afghan youth. इंडिया और अफगानिस्तान के बिटवीन स्पोर्ट्स कोऑपरेशन को स्ट्रेंथ करने के लिए भी कुछ डिस्कशंस किए गए हैं, स्पेशली क्रिकेट। इंडिया एंड अफगानिस्तान एग्री टू एनहांस ट्रेड थ्रू ईरान चाबहार पोर्ट, facilitating commercial exchange and humanitarian shipment, and reinforcing India's strategic role in regional connectivity. What the Taliban seek from India? तालिबान इंडिया से क्या चाहता है? आखिर तालिबान क्यों इंडिया के साथ एंगेज करने के लिए रेडी है? Requested India to issue visa. The Taliban government has requested India to issue visa for Afghan businessmen, patients, and students, aiming to restore people-to-people ties disrupted since the regime change. India's concern, however, this demand faces challenges as India does not officially recognize the Taliban, has security concerns regarding visa applications, and currently lack functional consulates or visa office in Afghanistan. Uh, तालिबान गवर्नमेंट ने इंडिया से अफ़गानिस्तान के लिए वीज़ा इश्यू करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। स्पेशली वहाँ के बहुत सारे पर्सन्स हैं, बिज़नेसमैन हैं, पेशेंट हैं, स्टूडेंट हैं जो इंडिया में आना चाहते हैं। बट इंडिया ने इससे रिलेटेड कुछ कंसर्न रेज़ किए हैं बिकॉज़ अ, अफ़गानिस्तान में इंडिया का कोई फंक्शनल कॉन्सुलेट या वीज़ा ऑफ़िस नहीं है। इंडिया ऑल्सो वांट्स टू गिव सपोर्ट, इंडिया भी तालिबान को प्रेजेंट में सपोर्ट करना चाहता है। डिस्पाइट दीज लिमिटेशंस, इंडिया हैज एक्सप्रेस्ड विलिंगनेस टू कंटिन्यू एंड एक्सपेंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अक्रॉस ऑल 34 अफगान प्रोविंसेस। इंडिया इज सिग्नलिंग अ pragmatic अप्रोच फोकसिंग ऑन रिकंस्ट्रक्शन एंड लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट रादर देन फॉर्मल रिकॉग्निशन। इंडिया भी चाहता है कि अफगानिस्तान को फुल्ली सपोर्ट किया जाए एंड लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट पर फोकस किया जाए। What is the status of elephants in India? According to report 2025 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में एलिफेंट का क्या स्टेटस है? भाई न्यूज, India's first ever nationwide DNA-based census of wild elephants has revealed a 25% decline in the country's elephant population over the past 8 years. इंडिया में पहली बार वाइल्ड एलिफेंट्स का डीएनए बेस्ड सेंसस किया गया है। इस सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में लास्ट 8 ईयर्स में एलिफेंट की पॉपुलेशन में अबाउट 25% का डिक्लाइन हुआ है। इट हाईलाइटिंग ग्रोइंग थ्रेड फ्रॉम हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन एंड ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स।
ये सेंसस एलिफेंट के हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड ग्रोइंग थ्रेट्स को हाईलाइट करता है। स्टेटस ऑफ एलिफेंट इन इंडिया रिपोर्ट 2025। इंडिया में एलिफेंट का क्या स्टेटस है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। द रिपोर्ट टाइटल स्टेटस ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया, डीएनए बेस्ड सिंक्रोनस ऑल इंडिया पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ एलिफेंट्स, SAIEE 2021-2025 estimated about 22,446 elephant compared to 29,964 in 2017। ये जो रिपोर्ट आया है 2025 का, इसका जो टाइटल है वो मेनली स्टेटस ऑफ एलिफेंट इन इंडिया, डीएनए विद सिंक्रोनस ऑल इंडिया पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ एलिफेंट, ये इसका टाइटल है। इस सेंसस के अकॉर्डिंग 2025 में इंडिया के अंदर अबाउट 22,446 एलिफेंट काउंट किए गए हैं, जो कि 2017 के कंपेयर में काफ़ी डिक्लाइन हुआ है। 2017 में टोटल 29,964 एलिफेंट थे। एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। ये जो सेंसस एक्सरसाइज एलिफेंट का किया गया है, ये प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। व्हाट इज स्पेशल इन दिस स्टडी, अभी जो ये सेंसस किया गया है इसमें स्पेशल क्या है? दिस स्टडी मार्क्स अ शिफ्ट फ्रॉम विजुअल एंड डंग बेस्ड काउंट टू अ एनडीएम मार्क रिसेप्टर टेक्निक, इनेबलिंग मोर साइंटिफिकली एक्यूरेट पॉपुलेशन एस्टिमेशन। इससे पहले जितने भी सेंसस किए जाते थे एलिफेंट के, उसके लिए विजुअल एंड डंग बेस्ड काउंट किया जाता था। बट इस सेंसस के अंदर डीएनए मार्क कैप्चर टेक्निक फॉलो किया गया है, और इस मेथड के थ्रू साइंटिफिकली एक्यूरेट पॉपुलेशन एलिफेंट का क्या है वो फाइंड आउट किया जा सकता है। The DNA-based method similar to that used in tiger estimation identify individual elephants through unique genetic markers। DNA-based मेथड जो फॉलो किया गया है, यही मेथड टाइगर एस्टिमेशन के लिए भी किया जाता है। डीएनए बेस्ड मेथड में प्रॉफिट ये होता है कि यहाँ पर इंडिविजुअल एलिफेंट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है थ्रू यूनिक जेनेटिक मार्कर्स। एस्टिमेशन टेक्निक यूज स्पीडली एक्सप्लिसिट कैप्चर रिसेप्टर SECR मॉडल्स इंटीग्रेटिंग जेनेटिक एंड हैबिटेट डाटा फॉर एक्यूरेट पॉपुलेशन एस्टिमेशन। ये जो सेंसस किया गया है इसमें एक स्पेशल टाइप की टेक्निक का यूज किया जाता है, SECR। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिफेंट, इंडिया में एलिफेंट का रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कर्नाटक 6013, आसाम 4159, तमिलनाडु 3136, केरला 2785, उत्तराखंड 1792, ओडिशा 912। रीजनल ट्रेंड्स हम देख सकते हैं कि किस स्टेट के अंदर कितना पॉपुलेशन है एलिफेंट का। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कर्नाटक के अंदर है, सेकंड नंबर पर आसाम के अंदर है, थर्ड नंबर तमिलनाडु। रीजनल ट्रेंड्स, वेस्टर्न घाट 11,934 एलिफेंट डाउन फ्रॉम 14,587, नॉर्थ ईस्टर्न हिल ब्रह्मपुत्र प्लेन 6,559, सेंट्रल इंडियन हाईलैंड एंड ईस्टर्न घाट 1,891, शिवालिक गैंगेटिक प्लेन 2,062। हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर रीजन के अंदर एलिफेंट का पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है। की मेजर कंसर्न, एलिफेंट का जो सेंसस किया गया है, इस सेंसस में मेजर कंसर्न क्या क्या फाइंड आउट किए गए हैं? हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, expansion of coffee and tea plantations, for farmland fencing and infrastructure projects all are fragmenting elephant habitat, especially in the western घाट। एलिफेंट का हैबिटेट लॉस हो रहा है बिकॉज कॉफ़ी एंड टी प्लांटेशन का एक्सपेंशन हो रहा है, फार्मलैंड फेंसिंग किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर वर्क किया जा रहा है। यही वजह है कि एलिफेंट हैबिटेट फ्रेगमेंट हो रहे हैं इन वेस्टर्न घाट। ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट हाईएस्ट इन आसाम एंड सेंट्रल इंडिया, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट आसाम एंड सेंट्रल इंडिया में सबसे हाई शो हुए हैं। Central India with less than 10% of elephants account for 45% of human death caused by the elephants। सेंट्रल इंडिया में एलिफेंट का नंबर जनरली कम है, बट
ह्यूमन का जो डेथ हुआ है एलिफेंट की वजह से वो सबसे ज़्यादा, इट मीन्स अबाउट 45% डेथ सेंट्रल इंडिया में हुआ है। पॉजिटिव डेवलपमेंट क्या रहे हैं इस सेंसस के अकॉर्डिंग? पोजिंग इंसिडेंट हैव डिक्लाइंड बट हैबिटेट डिग्रेडेशन रिमेन्स द मेजर थ्रेट। पोजिंग इंसिडेंट इस सेंसस के अकॉर्डिंग डिक्लाइन हुए हैं, बट हैबिटेट डिग्रेडेशन अभी भी एक मेजर थ्रेट बना हुआ है एलिफेंट के लिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है? प्रोजेक्ट एलिफेंट वॉज लॉन्च्ड इन 1992 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। इंडिया में 1992 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया, एम्ड एट सपोर्टिंग स्टेट्स टू मैनेजिंग दियर वाइल्ड एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन थ्रू फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस। प्रोजेक्ट एलिफेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सभी स्टेट के लिए वाइल्ड एशियन एलिफेंट के पॉपुलेशन को मैनेज करना इसका मेन एम था, और इसके लिए फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट का यूज करके वो एशियन एलिफेंट का नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। अबाउट एशियन एलिफेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? इंडिया हैव लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल पॉपुलेशन ऑफ एशियन एलिफेंट। इंडिया के पास एशियन एलिफेंट का लार्जेस्ट नंबर है, मोस्ट स्टेबल पॉपुलेशन यहीं पर है। अबाउट ओवर 60% ऑफ ऑल वाइल्ड एशियन एलिफेंट लिविंग इन इंडिया। ऑल वाइल्ड एशियन एलिफेंट का 60% इंडिया के अंदर लिविंग कर रही है। इंडिया हैव 31 एलिफेंट रिजर्व्स इंक्लूडिंग रिसेंट एडिशंस लाइक सिंगफाना एलिफेंट रिजर्व इन नागालैंड, डांडेली एलिफेंट रिजर्व इन कर्नाटक, लेमरू एलिफेंट रिजर्व इन छत्तीसगढ़। इंडिया के अंदर टोटल 31 एलिफेंट रिजर्व हैं। कुछ रिसेंटली रिजर्व इस्टेब्लिश किए गए हैं, सच एज नागालैंड में सिंगफॉन एलिफेंट रिजर्व, कर्नाटक में डांडेलिक एलिफेंट रिजर्व, छत्तीसगढ़ के अंदर लेमरू एलिफेंट रिजर्व, ये सभी रिसेंटली इस्टेब्लिश किए गए हैं। Now the total expansion area is 76,508 square kilometer of elephant reserves spread across 14 states in India. प्रेजेंट में एलिफेंट के लिए जो रिजर्व मेकिंग किए गए हैं, टोटल एक्सपेंशन 76,508 स्क्वायर किलोमीटर में इसका एक्सपेंशन है। अबाउट 14 स्टेट इंडिया के हैं जहां पर ये रिजर्व इस्टेब्लिश है, स्प्रेड है। स्पीसीज ऑफ एशियन एलिफेंट, एशियन एलिफेंट की कौन कौन सी स्पीसीज हैं? एशियन एलिफेंट आर कैटेगराइज इनटू 3 सब स्पीसीज: इंडियन सब स्पीसीज, सुमात्रा सब स्पीसीज, श्रीलंकन सब स्पीसीज। एशियन एलिफेंट is the largest territorial mammal in Asia, which inhabit grassland and forest across 13 countries in South and Southeast Asia, adapting to various environments from dry to wet. Compared to African savanna elephant, Asian elephant herds are smaller in size. अफ्रीकन सवाना एलिफेंट के साथ अगर कंपेयर किया जाए, एशियन एलिफेंट हर्ड्स साइज में स्मॉलर होते हैं। थ्रू आउट एशिया एलिफेंट्स हैव सिग्निफिकेंट कल्चरल इंपॉर्टेंस एंड हैव आल्सो अ लॉन्ग हिस्ट्री टू क्लोज एसोसिएशन विद ह्यूमन, इवॉल्विंग इनटू सिंबॉलिक फिगर्स इन वेरियस कल्चर्स। पूरे एशिया के अंदर एलिफेंट्स कल्चरल इंपॉर्टेंस रखते हैं एंड ह्यूमन के साथ इनके एसोसिएशन का लॉन्ग हिस्ट्री रहा है। प्रोटेक्शन स्टेटस ऑफ एशियन एलिफेंट, एशियन एलिफेंट को क्या क्या प्रोटेक्शन गिवन किए गए? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एट 1972 के शेड्यूल 1 में इन्हें ऐड किया गया है। IUCN रेड लिस्ट एंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको रखा गया है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। ऑब्जेक्टिव्स और ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? नंबर 1, रीस्टोर हैबिटेट टू ब्रिंग बैक द नेचुरल होम्स ऑफ एलिफेंट एंड द पाथ दे ट्रेवल। नंबर 2, प्रिवेंट डेथ, develop various ways to stop unnatural causes of elephant death in India. Number 3, conservation planning, create and promote smart plans to protect elephants using science and technology. Number 4, combat illegal trade, stop the illegal selling and buying of elephant tusks and shield elephant from hunters and poachers. Number 5, reduce conflicts, it aims to lower fight between people and elephant in areas where they both live. Number 6, aim to limit human activity, to limit human activity into places where elephants live. Number 7, support studies and research, encourage studies and research on elephant production and spread awareness about them. Number 8, to boost healthcare, make sure domestic elephant get to right care to stay healthy and to help them breed properly. Number 9, to boost community development, help communities living near elephant to cooperate in the ways that is good for both human and elephants. In this session, we will discuss about Neelakunji flower, which blooms once in 12 years. Recently, IUCN added this flower in a red list. Why in news?
Nila Kurunji is a purplish flowering shrub which blooms once in 12 years, has been included on the IUCN Red List of Threatened Species. नीला कुरिंज विच इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रोबिलैंथिस कुंथियाना, ये एक पर्पलिश फ्लावरिंग श्रब है। 12 ईयर्स में वन टाइम ब्लूम होता है। आईयूसीएन रेड लिस्ट में इसको ऐड किया गया है, स्पेशली थ्रेटन्ड स्पीसीज इसको डिक्लेयर किया गया है। This is the first ever global red list assessment of this species of the mountain grassland of southwest India. साउथ वेस्ट इंडिया के माउंटेन ग्रासलैंड की ये पहली स्पीसीज है जिसके लिए ग्लोबल रेड लिस्ट असेसमेंट किया गया है। द मास ब्लूमिंग ऑफ द फ्लावर इज अ ह्यूज टूरिस्ट अट्रैक्शन। ये फ्लावर जब ब्लूमिंग होता है उस टाइम पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर इसको देखने के लिए जाते हैं। अबाउट नीला कुरिंजी, नीला कुरिंजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। इट इज अ एंडेमिक श्रब, ये एक एंडेमिक श्रब है। हाइट 3 मीटर, सीन ओनली इन द हाई एल्टीट्यूड सोलर ग्रासलैंड इकोसिस्टम ऑफ साउथ वेस्ट माउंटेन इन इंडिया एट एन एलिवेशन ऑफ 1340 टू 2600 मीटर। ये जो फ्लावर है ये वेस्टर्न घाट के सोलर ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हाई एल्टीट्यूड पर पाए जाते हैं। अबाउट 1340 टू 2600 मीटर एलिवेशन पर ये फ्लावर मिल जाते हैं। नोन फॉर दियर मैसिव ब्लूमिंग, दे गिव पर्पलिश ब्लू कलर टू द माउंटेन ग्रासलैंड एंड आर पॉपुलरली नोन एज नीला कुरिंजी ब्लूम्स। माउंटेन ग्रासलैंड को ये फ्लावर पर्पलिश ब्लू कलर गिवन करते हैं बिकॉज जब ये ब्लूम होते हैं उस टाइम पर ये वेस्टर्न घाट के पूरे माउंटेन ग्रासलैंड को एक पर्पलिश कलर गिवन करते हैं और यही वजह है कि इसका नाम नीला कुरिंजी ब्लूम्स पड़ा है। The species had 34 subpopulations within 14 ecoregions of the high altitude mountain range of southwest India. साउथ इंडिया के हाई एल्टीट्यूड माउंटेन रेंज के अबाउट 14 इको रीजन्स के अंदर इस फ्लावर के अबाउट 34 सब पॉपुलेशन पाई जाती हैं। 33 सब पॉपुलेशन इन द वेस्टर्न घाट एंड वन इन ईस्टर्न घाट। 33 सब पॉपुलेशन इसकी वेस्टर्न घाट के अंदर है जबकि वन सब पॉपुलेशन इसका ईस्टर्न घाट में पाया जाता है। कॉजेज ऑफ थ्रेड, नीला कुरिंजी फ्लावर के बिफोर क्या क्या थ्रेड है, उन थ्रेड के क्या क्या कॉजेज हैं। इट्स फ्रेजाइल हैबिटेट इन द माउंटेन हाई एल्टीट्यूड ग्रासलैंड दैट हैज बीन अंडर प्रेशर ऑफ कन्वर्जन ऑफ टी एंड सॉफ्टवुड प्लांटेशंस एंड अर्बनाइजेशन। वेस्टर्न घाट में नीला कुरिंजी एरियाज का टी के लिए सॉफ्टवुड के लिए बहुत ज़्यादा कन्वर्जन किया जा रहा है। इस रीजन के अंदर अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। यही वजह है कि इस फ्लावर का जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसका। ऑलमोस्ट 40% ऑफ द हैबिटेट हैज बीन लॉस्ट, द रिमेनिंग इज अंडर प्रेशर फ्रॉम इन्वेजन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज सच एज यूकेलिप्टस एंड ब्लैक वेटल। इस फ्लावर का अबाउट 40% हैबिटेट लॉस्ट हो चुका है। अभी जो हैबिटेट बचा हुआ है उस हैबिटेट पर कुछ एक्सोटिक स्पीसीज सच एज यूकेलिप्टस एंड ब्लैक वेटल का इन्वेजन है। ये भी एक बिग थ्रेट बना हुआ है इस स्पीसीज के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स एंड क्लाइमेट चेंज पोज अ थ्रेट टू नीला कुरिंजी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम एंड क्लाइमेट चेंज भी नीला कुरिंजी के थ्रेट का कॉज बन रहा है। What is India's plastic problem? Could the global plastic treaty end plastic pollution? What is plastic and microplastics? Plastic is formed from polymers derived from fossil fuel. Chemical constituents of plastic are polymers. प्लास्टिक फॉसिल फ्यूल के द्वारा ड्राइव किए गए पॉलीमर्स के द्वारा फॉर्म होते हैं। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो पॉलीमर्स ही होते हैं। Microplastics are plastic smaller than 5 millimeters. They can be found in blood, breast milk, placenta and bone marrow. 5 मिलीमीटर से स्मॉलर प्लास्टिक को माइक्रोप्लास्टिक में काउंट किया जाता है। माइक्रोप्लास्टिक ब्लड, ब्रेस्ट मिल्क, प्लेसेंटा एंड बोन मैरो के अंदर भी ये फाउंड किए जा सकते हैं। व्हाट आर पॉलीमर्स? पॉलीमर्स कैन बी नेचुरल लाइक सेल्यूलोज, लिग्निन, बेसिस ऑफ नियरली एवरीथिंग इन नेचर और मैन मेड लैब्स। पॉलीमर्स नेचुरल भी हो सकते हैं सच एज सेल्यूलोज, लिग्निन
और मैन मेड भी हो सकते हैं। नेचुरल पॉलीमर्स जो होते हैं वो नेचर में जो भी है उसका बेसिस होते हैं। Polymers has a ability to be molded into a nearly infinite variety of objects, from critical things including aircraft and medical equipment to cosmetic items such as tinsel, baubles, and packaging. It has low cost of production relatively to materials such as glass and aluminum. What are the challenges from plastic? प्लास्टिक से सोसाइटी के बिफोर क्या-क्या चैलेंजेस हैं? प्लास्टिक आर मिक्सचर्स ऑफ मोनोमर्स, पॉलीमर्स एंड केमिकल एडिटिव्स। प्लास्टिक्स मोनोमर्स, पॉलीमर्स एंड केमिकल एडिटिव्स का मिक्सचर होते हैं। देयर आर मोर देन 16,000 केमिकल्स यूज्ड और प्रेजेंट इन प्लास्टिक मटेरियल एंड प्रोडक्ट। प्लास्टिक मटेरियल एंड प्रोडक्ट के अंदर अबाउट 16,000 टाइप के केमिकल्स होते हैं। दे हैव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट। ये सभी केमिकल ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। दीज केमिकल्स आर indestructible. They can harm living organisms in rivers, oceans, land, and ultimately inside people. Status of plastic production and pollution. प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड पॉल्यूशन से रिलेटेड क्या स्टेटस है? ग्लोबल एनुअल प्लास्टिक प्रोडक्शन डबल्ड फ्रॉम 234 मिलियन टन इन 2000 टू 460 मिलियन टन इन 2019। 2019 में ग्लोबल प्लास्टिक प्रोडक्शन एनुअली जो रहा है वो 234 मिलियन टन रहा है। 2019 में ये 460 मिलियन टन तक पहुंच चुका है। प्लास्टिक वेस्ट इंक्रीज फ्रॉम 156 एमटी इन 2000 टू 353 मिलियन टन इन 2019। प्लास्टिक वेस्ट भी इन 19 ईयर्स में काफ़ी इंक्रीज हुआ है। 2000 में जहां 156 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हुआ करता था, वहीं 2019 में ये 353 मिलियन टन जनरेट हो रहा है। इफ नो चेंजेस आर मेड, प्रोडक्शन माइट ट्रिपल बाय 2060। प्लास्टिक emissions are highest in southern Asian, sub-Saharan African and Southeast Asian countries. साउथ एशियन कंट्रीज, सब सहारन अफ्रीकन एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर प्लास्टिक एमिशंस हाईएस्ट है। एस्टिमेटेड प्लास्टिक प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस कंट्रीज पर ईयर। इंडिया एमिट अराउंड 9.3 मिलियन टन, नाइजीरिया 3.5 मिलियन टन, इंडोनेशिया 3.4 मिलियन टन, चाइना 2.8 मिलियन टन। हाई इनकम कंट्रीज हैव हायर प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन रेट, बट नन आर रैंक्ड इन द टॉप 90 polluters, mostly due to 100% collection coverage and controlled disposal. What are various reasons for mismanagement of plastic in India? इंडिया में प्लास्टिक के मिसमैनेजमेंट से रिलेटेड वेरियस रीजंस क्या क्या है? इंडिया हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर फॉर सेवरल रीजंस. Number one, there is a large and increasing population which is becoming more affluent. More population generate more waste, and the country has not proper waste management services. Number two, dumping sites. Dumping sites in country are home to uncontrolled land disposal. Number three, the country's official waste generation rate, estimated to be 0.12 kg per capita per day, is possibly underestimated, while waste collection is overestimated. Negotiations on a legally binding global treaty to end plastic pollution. प्लास्टिक पॉल्यूशन को एंड करने के लिए लीगली बाइंडिंग ग्लोबल ट्रीटी क्या रही है? व्हाट वाज रेजोल्यूशन टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन? प्लास्टिक पॉल्यूशन को एंड करने के लिए रेजोल्यूशन क्या रहा है? इन 2022, द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली पास्ड द रेजोल्यूशन टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। 2022 में प्लास्टिक पॉल्यूशन को एंड करने के लिए यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है। सेटिंग अप ऑफ एन इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी INC was set up and tried to develop a legally binding instrument, a global treaty to govern plastic production and its use across all nations. कंट्रीज को लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पर प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करने के लिए INC यहाँ पर सेटअप किया जाता है। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रेडी इन 2022, 175 nations agreed to develop a legally binding agreement on plastic pollution by 2024 to reduce greenhouse gas emissions from plastic production, use and disposal. 2022 में about 175 कंट्रीज ने लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन पर साइन किया
और 2024 तक यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए स्पेशली GHG जो प्लास्टिक पॉल्यूशन यूज एंड डिस्पोजल के थ्रू रिलीज होते हैं, उन्हें कम करने के लिए यहाँ पर कुछ टारगेट सेट किए गए। In 2025, in Busan, South Korea, representatives from over 170 countries have gathered for the fifth and final round of negotiations on a legally binding global treaty to end plastic pollution, including marine pollution. प्लास्टिक पॉल्यूशन को एंड करने के लिए ग्लोबल ट्रीटी 2022 से कंटिन्यू चल रही है। 2025 में फिफ्थ एंड फाइनल राउंड ऑफ नेगोशिएशंस ऑन अ लीगली बाइंडिंग ग्लोबल ट्रीटी जो कंडक्ट किया गया वो साउथ एरिया बुसान में किया गया। अबाउट 170 कंट्रीज में इसमें पार्टिसिपेट किया। व्हाई देयर इज अ नीड फॉर अ ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी का नीड क्यों हुआ? नंबर वन, ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन प्लास्टिक। Plastic's adaptable and versatile properties have made it indispensable, which leads to a surge in global production, double from 300 234 million ton in 2000 to 460 million ton in 2019। प्लास्टिक पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। प्लास्टिक एडेप्टेबल है, वर्सेटाइल प्रॉपर्टीज है इसकी। यही वजह है कि ज़्यादातर पीपल के द्वारा इसको यूज किया जाता है। बाय 2040 प्लास्टिक प्रोडक्शन इज प्रोजेक्टेड टू रीच 700 million ton। Number of plastic waste and environmental crisis. Plastic decomposition take 20 to 500 years with less than 10% recycled till now. Currently, annual plastic waste generation is approximately 400 million tons and could increase by 62% by 2050. A large amount of waste lead into rivers and oceans, leading to harmful microplastic and monoplastic in rivers and oceans. Number three, impact on environment and health. Plastic waste threaten human health and ecosystem. Chemical in plastic can cause various problems such as endocrine disruptions, cancer, diabetes, reproductive disorders, and neurodevelopmental impairment. Marine, freshwater, and terrestrial species are severely affected. Number four, plastic role in climate change. Plastic production and waste management contribute significantly to greenhouse gas emissions. Plastic accounted for 3.6% of global emissions in 2020, primarily from fossil fuel based production. Number five, India's contribution to plastic pollution. Our country, India, is the largest contributor to global plastic pollution, which accounted for 20% of emissions, 9.3 million ton annually, surpassing Nigeria, Indonesia, and China. India's stance on a global plastic treaty. ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी पर इंडिया का स्टेंस है। नंबर ओपोजिशन टू प्रोडक्शन कैप। India opposes restrictions on polymers production, arguing that such measures violate the UNEA 2022 resolutions mandate। इंडिया ने पॉलीमर्स प्रोडक्शन के रेस्ट्रिक्शन को ओपोज किया है। नंबर टू, फोकस ऑन फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस। इंडिया एडवोकेट्स फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फाइनेंशियल एड एंड टेक्निकल सपोर्ट टू बी पार्ट ऑफ द ट्रीटीज कोर प्रोविजन। Number three, regulation of harmful chemicals. Regulation of harmful chemicals in plastic production should be based on scientific studies and regulated domestically. Number four, approach to plastic phase out. In 2022, while India banned 19 categories of single-use plastics, it emphasized that any phase out in the treaty should be pragmatic and driven by nation circumstances. In 2022, India brought plastic waste management amendment rules, which banned 19 categories of single-use plastics. Number five, safe waste management mechanism. India demands for a mechanism to assess infrastructure needs, financial requirement, and predictable funding for scientific and safe waste management. So thanks for